मोदी ने बोला था कि पहले मीटिंग में पहला ही काम किसानों को कर्जा माफ करूंगा। क्या कर्जा माफ? हाथ में तो फूल पाए हो तो फूल ही देंगे। ये हमारे खेत का फूल है, ये वो कमल का फूल थोड़ी ना है। जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका जो पंच लाइन है आपली सरकार, वो सही में आपली है। महाराष्ट्र में तो अभी थोड़ा कंफ्यूजन ही है। अभी जैसे अभी सरकार गिर गई है वो तरीके से मैं थोड़ा बीजेपी से खुश नहीं हूँ। महाराष्ट्र में क्या देखते हैं? आपको लगता है कंटिन्यूटी चाहते हैं या बदलाव? कंटिन्यूटी तो चाहिए, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, देवेंद्र फडणवीस चाहिए। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि किसानों की आय डबल करना है, लेकिन कहाँ पे एक्चुअली प्रधानमंत्री ने आके देखने को ना। तो आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस आ सकती है? कांग्रेस आए या ना आए आपको? आए या ना आए, मगर हम कांग्रेस को ही करेंगे। आपको फूल बढ़िया लगता है? बढ़िया तो कौन सा नहीं लगता है मेरे को। If you follow politics, then it's got to be coming out of your ears. How Maharashtra is the big prize. How the national political dynamics rest on the fate of this state. How here it's a 5-region election instead of elections in just one state. And of all these 5 regions, there is one region that could be the kingmaker this election. The road to Mumbai comes through Vidarbha. Vidarbha region is mostly agricultural region, and it has 62 assembly seats, and it is always said that whoever gets more seats here, it's easy for them to get power in Mumbai. The Vidarbha region of eastern Maharashtra comprises of 11 districts of the Nagpur and Amravati division. These include Yavatmal, Akola, Amravati, Wardha, Buldhana, Washim, Nagpur, Chandrapur, Bhandara, Gadchiroli and Gondia. The region of Vidarbha occupies 32% of the total area of Maharashtra and holds in it 22% of Maharashtra's total population. With 62 seats in of the total 288 seats of Maharashtra Legislative Assembly, both the Mahayuti and the Agadi view Vidarbha as critical. There is the rural expanse, and then there are these urban pockets. The Nagpur city, the hub of Vidarbha, is considered the geographical center of India. The 0 mile is located here. But away from the city blitz, Vidarbha lives in its rural landscape. Infamous for farmer suicides, district Wardha also houses the Sevagram Ashram. The residence of Mahatma Gandhi from 1936 to his death. That one spot of calm in the chaos, the cacophony of this election. To Gandhiji's Teen Bandar. There is where I am going. Very pretty, I have to say, very quaint. You feel apologetic even talking because it's so serene, so unlike what we do. 1942 में जब भारत छोड़ो जो गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का, 1942 में इसी आदि निवास में वो हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की मीटिंग।
तो क्विट इंडिया मूवमेंट की यहीं से शुरुआत हुई, जी। यहीं पे मीटिंग हुई थी। गांधी जी की सोच तो बहुत आगे तक थी। जैसे हम अभी भी देखते हैं कि इस आश्रम में 11 व्रतों का पालन जो गांधी जी ने किया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, निर्भयता, स्वदेशी अपनाओ। अभी भी हमारे आश्रम में कपास से कपड़ा बुनाई काम चलता है, गौशाला चलती है। तो गांधी जी के मेन जो हम विचारधारा देखे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलते थे, और वही विचारधारा हम आज भी देखना चाहते हैं। हर जगह हमने देखा है तो पूरा मतलब वो भी है कि सर्वधर्म, सारे धर्म इकट्ठे, वो सारे धर्म, यानी गांधी जी कहते थे, अगर मैं यहाँ पर गांधी जी तो धर्म भेदभाव नहीं किया करते थे। गांधी जी यहीं पर खुले आसमान के नीचे प्रार्थना किया करते थे, और अभी भी वो प्रार्थना हम शुरू रखे हैं। अभी भी रोज शाम को 6 बजे वो प्रार्थना होती है कि सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सारे धर्मों की प्रार्थना यहाँ पे होती है। गांधी जी भी करते थे। The moral height of man hasn't increased even an inch. Tolstoy said it. Jesus, Buddha, Prophet Muhammad, all have said the same thing, said Gandhi. The political relevance of Vidarbha isn't lost on anyone. If there is a swing region this election, it is Vidarbha. To quote a political cliche, what many political analysts say, if this election is going to be won or lost, it's going to be in Vidarbha. Of the 76 direct contests between the Bharatiya Janata Party and the Congress, 36 of those constituencies lie in Vidarbha. The political relevance aside, the ideological relevance of Vidarbha runs deep, not just for the state of Maharashtra, but where Vidarbha is concerned, ideologically, it's been one of the fulcrums on which rests India. It was not far from here in Nagpur that Dr. B.R. Ambedkar converted to Buddhism. Right here where I sit at Sevagram Wardha, Bapu, Mahatma Gandhi, came in from Gujarat in 1936 and set up his village here. He ran the freedom movement from here. And then once again, in Nagpur, Vidarbha is headquartered the ideological parent organization of the Bharatiya Janata Party, the RSS. Strangely, if you look at it, Wardha here, the Sevagram Ashram, the RSS headquartered in Nagpur, two diametrically very relevant to the country, polar opposite ideologies, quite like the battle which is playing out in Maharashtra. प्रशांत, आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं तो सेवाग्राम आश्रम से 25 साल से जुड़ा 25 हुआ साल से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े सेवाग्राम आश्रम से? वैसे तो जुड़ने का एक कारण है, जो हमारे एक बापू के एक तीसरे नंबर की बहू थी, निर्मला माता जी करके, तो उन्होंने एक ही कहा, आपके जैसे होनहार बच्चे अगर बाहर निकल जाओगे तो ये आश्रम का क्या होगा, आप आश्रम में काम करिए। इसलिए मैं 95 में मैं यहाँ जुड़ गया। आपकी इच्छा क्या है, कैसी सरकार चाहेंगे? चरण तो अच्छा होना चाहिए, और जो गरीब है उसको उसकी मदद होनी चाहिए। सबसे गरीब महाराष्ट्र नहीं हुई है, ऐसा तो नहीं लगता। नहीं हुई, नहीं किसी सरकार ने नहीं, कोई सरकार नहीं। जो ग्राउंड पर काम कर रहा है उस पर कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं। जो बड़े लेवल पर का काम करता है उसी को सरकार का फायदा मिलता है। तो कोई सरकार ने वैसे मदद, ऐसा कुछ नहीं। पर वोट देंगे, वोट तो देना है। वोट तो देना है, वोट तो हम अभी भी बोलते हैं, कभी भी बोलेंगे, हम कांग्रेस के अवला को किसी को नहीं देने के। तो आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस आ सकती है? कांग्रेस आ सकती आए या ना आए, आपको आए या ना आए, मगर हम कांग्रेस को ही करेंगे। आप कांग्रेस को ही करेंगे। काम में कुछ है,
कितना मिलता है? 1 घंटे? ज्यादा नहीं मिलता है, ज्यादा मिलना चाहिए। इतना सही बात है, इतना घुमाना पड़ता है। तो कितना मिलता है आपको? 200 रुपए रोजी। सिर्फ 200 रुपए रोजी? दिन भर घुमाना पड़ता है। कुछ बचता तो कुछ तो होगा ही नहीं, फिर कहाँ जाता है? मतलब 200 रुपया दिन का बस। हाँ, महंगाई है। महंगाई। वोट डालती हो? वोट हाँ। डालती हो? क्या सोच के डालती हो कि ऐसा सरकार से? कोई सरकार में कोई नेता मदद करता है? नहीं करता है। कौन करेगा मदद? महंगाई सोच कर के ये सरकार ऐसा करेगी या करेगी, कुछ सोचते हो? कौन सा सरकार आया तो करता नहीं। कोई महंगाई बढ़ कर देता है। किसी सरकार ने नहीं किया। किसी सरकार ने नहीं किया। किसी का बात चल रहा है कि ये बेहतर है, ये अच्छा नहीं है, पंजा अच्छा है या फूल बढ़िया है? आपको फूल बढ़िया लगता है? बढ़िया तो कौन सा नहीं लगता है मेरे को। किसका सुन के वोट डालते हो? गाँव वाले सुनते हैं, उसका पर डालते हैं। जो फूल अच्छा है, फूल पे डालना। घर में और कोई है कमाने का? मेरे पति है, हम है। बच्चा लोग दोनों काम नहीं करते लोग। नौकरी नहीं है? नहीं, नौकरी नहीं है। ऐसे माटी गोटा के काम करते लोग, मजदूरी करते लोग। मजदूरी करते? नौकरी ढूंढा है? नौकरी हम लोग को मिलता नहीं, क्या करेंगे? बहुत ढूंढा, बहुत देखा, नहीं मिला। महंगाई है कि नहीं? महंगाई है नो मैडम। कई वोट डालते हो? जी हाँ, वो आदमी हम लोग को बतलाते हैं, ठीक है तुम्हारे वोट डालेंगे, कुछ मेरे लिए करो। हाँ हाँ बोलते हैं, बल्कि करते लो नहीं। हाँ बोलते हो पर करते नहीं। नहीं, कुछ भी नहीं होता है, बल्कि हम लोग वोट डालते हैं। अभी वोट नहीं डालेंगे तो हम लोग के नाम कट जाएगा। जो राशन मिलता है तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। कोई नेता पसंद है? ये साल में पंजा पसंद है। पिछले साल कौन? मोदी पसंद था। पिछले साल मोदी पसंद था। बल्कि अभी ये साल में उसके जिताना है। मोदी नहीं चाहिए? चाहिए नहीं? नहीं चाहिए। और वो महंगाई करते हैं कि हम लोग के पंजा के जिताना है। हम लोग देखेंगे कि पंजा क्या करता है। पर पंजा था पहले, कुछ किया पंजा? नहीं, पहले बहुत करा, हम इतना महंगाई नहीं था। लाडकी बहन जो है मोदी दे रहा है ना, लाडकी बहन सभी दे रहा है तो सभी ले रहा वो। दीदी आपको मिल रहा है? खुश है? आप खुश नहीं है? क्या मिलता है? खुश है। मिलता है, इधर मिलता है, उधर जाता है, देता है और महंगाई बढ़ा देता है। In Vidarbha region, this election is a constant battle, a pull and tug between 3 C's: cash, crop and caste. Cash in terms of freebies. The big ticket Ladki Bahin scheme is viewed by the Mahayuti as a possible game changer. 1,500 rupees a month to one woman per household. Cash, caste. While Congress is banking on its time-tested formula of ADMK, which stands for Adivasis, Dalits, Muslims and Kumbis, the BJP in this region hopes to consolidate the OBCs, micro-OBCs and the Banjara community. And lastly, but most importantly, crop, farmers. And the big question, is there farm distress? Problems like irrigation, always long-term problems. It's not to be solved in overnight. So these are always there, but have remained unresolved also. This was a farmer suicide capital for the country. Since 90s, a lot of farmers have committed suicide here. So situation has not changed much over the years. So out of 62, maybe you can say 40 will be rural seats where farmers decide the vote. So this is going to be a big challenge for both the parties, like how they woo the farmers. So maybe that can decide in Vidarbha at least, and whoever gets more seats in Vidarbha, they have a chance to rule Maharashtra. A landscape largely rural, mostly agrarian and traditionally backward. Buried in the conscience of Maharashtra lies the bleached bones of its Vidarbha farmers, debt-ridden farmers who continue to claim their own lives.
The Vidarbha region accounted for 1,439 of farm suicides in the year 2023. The angst turned to anger, vented against the Mahayuti in Lok Sabha. Cotton, kapas, soya bean is the main crop. In this region, it's also called the political crop. Discontent over it has changed governments in the past. इस बार क्या जो किसान है उसका सब सही चल रहा है? नहीं किसान भाव जगह जो मिलता है सही चल रहा है सब? नहीं ना, भाव नहीं मिल रहे। 2022 में हमने सोयाबीन बेचा 6,800 में, 23 में बेचा 5,200 में, इस साल 24 में अभी 3,700 रुपए चालू है। 4,000 के अंदर ही है। सोयाबीन आप भी खेती करते हैं? और कपास का भाव है अभी 7,300 रुपया और गवर्नमेंट का रेट है 7,531 रुपया। लेकिन गवर्नमेंट खरीदी नहीं करती, प्राइवेट जिनिंग वाले प्राइवेट वाले खरीदी करते हैं, इसलिए वो भाव कम देते। गवर्नमेंट कपास का खरीदी नहीं कर रही। पिछले साल भी नहीं किया, इस साल भी नहीं कर रहे। और इसमें जो खाद यूरिया लगता है उसमें लागत ज्यादा है या मतलब बच जाता है? बहुत बढ़ गया, लागत का तो खर्चा बहुत बढ़ गया। 2013 में एक बोरी का कीमत था 400 रुपया। किस चीज का बोरी? ये डीएपी की। डीएपी हाँ। अभी 1750 रुपए हो गए खाद। आप सोयाबीन की खेती करते हैं? सोयाबीन सभी ये कपास और सोयाबीन। पर सोयाबीन तो अब गवर्नमेंट एमएसपी के उसमें ले रहा है। वो तो एमएसपी पे माउचर वाउचर वो बहुत है, उसमें रहती है, ये रहता है। हाँ, पैसे भी जल्दी मिलते क्या? एमएसपी से नहीं कह तो रहा है सरकार ले रहा है कि नहीं ले रहा है? ये कल से चालू हो गया। वो वाले निकष बहुत बड़े, ये ज्यादा निकष है। 7/12 में पेरा होना और उसमें मट्टी नहीं होना, गीलापन नहीं होना, निकष के हिसाब से हमारी सोयाबीन ले नहीं सकते। उनको प्योर माल होना, ए ग्रेड का माल होना। ए ग्रेड तभी एमएसपी में जाएगा। ये बारिश से कहा या इस साल बारिश हो गई तो माल खराब हो गए। अभी इस साल तो 2 नहीं तो 2.5 बोरे एक एकड़ में हो गए। कहीं 1 एकड़। ये देखो, ये मेरा 5 एकड़ सोयाबीन था यहाँ पे। तो यहाँ पे सोयाबीन 17 बोरे हो गए 5 एकड़ में। 5 एकड़ में बस 17 बोरे। कैसा चलाएंगे परपंच? लेबर का बहुत ही बढ़ गया। अभी 300 रुपए, 500 रुपए हो गया। कुछ बचता है आपका? नहीं, कुछ भी नहीं बचता। हमारे घर से जा रहे पैसे मजदूरी के लिए। 10,000 अगर रहा रहता भाव तो हमको 2,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से 2-3 हजार रुपए बचते थे, तो हमारा प्रपंच चलता था। अभी बच ही नहीं रहा ना, तो कुछ नहीं बचता है। लागत ज्यादा। हाँ, लागत ज्यादा हो गई, महंगाई बढ़ गई ना। जीएसटी लग गया सबके ऊपर। ये खाद के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया, हमारे दूध के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया, पनीर के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया। 5% से 28% तक जीएसटी है सभी चीजों पे। तो किसान ना खुश है इस बार? ना खुश है। हर एक चीज का जी। तेल बताइए क्या भाव था? 1600 के तेल, और 2 रोज में का 2200 रुपया हो गया। 600 रुपया बढ़ा दिए तेल के ऊपर। तेल बढ़ गया, सोयाबीन नहीं बढ़ गया। सोयाबीन नहीं बढ़ा है। लोग क्या करेंगे? गरीब कहाँ जाए? 19 में किसके साथ थे? 19 में हम बीजेपी के साथ थे। 10 साल से अभी तक बीजेपी के साथ में। 10 साल से? हाँ, अभी तक बीजेपी के साथ है। बाकी कुछ नहीं कर रहा, कहीं नहीं कर रहा। कहाँ आप देखोगे? रास्ता देखिए, सब देखिए, महंगाई देखिए, आदमी लंबा होते। देवेंद्र फडणवीस ने बोला था क्या कपास को इतना भाव देंगे, 6,000 दूंगा, उसने वो डिंडी निकाली, नहीं दिया। मोदी ने बोला था कि पहले मीटिंग में पहला ही काम किसानों को कर्जा माफ करूंगा। क्या कर्जा माफ? 2014 हमको कर्जा माफ भी नहीं होना, लाडली बहन भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। सिर्फ हमारे इसको भाव होना, सोयाबीन को, कपास को, जो हमारे टमाटर है उसको सबको भाव होना, चने को। हमारे को कर्जा माफ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं। हम खुद ही कर्जा भर देते। लाडकी बहन आता है घर में? आता है। आ रहा है। क्या फायदा? हमारे पैसा काट के हमारे कोई दे रहे तो कोई मतलब है? सिलेंडर बढ़ गया, बिजली बढ़ गई। मतलब नहीं ना जी। ये बिजली के ऊपर अभी 10% बढ़ा दिया। बिजली चालू करो या मत करो, घर में रहो या मत रहो, 2 महीना ताला भी लगा तरी उसका बिल बन के आ रहा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बिजली बिल खींचा खींच है, ऐसे कहीं नहीं है। बीजेपी के खिलाफ रहेंगे सब पूरे महाराष्ट्र में। पूरा महाराष्ट्र में इस साल बीजेपी की हवा एकदम ढीली है। तो ना खुश है ना। अमीर लोगों के लिए बिजली है और किसान के लिए नहीं। कर्जा माफी नहीं। जिसके भरोसे चल रहा है ये राजस्थान, उसके लिए कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे?
From the rural belt of Wardha back to the city lights of Nagpur. The bleakness of the hinterland turns to hope of deliverance. The mood dramatically changes. After all, this is the Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis's constituency, Nagpur Southwest. क्या सोच के वोट डालेंगे? जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका जो पंच लाइन है आपली सरकार, वो सही में आपली है। वो जनरल पब्लिक के अप्रोच में है, हर पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए सारे कामकाज चल रहे हैं, तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर आपली सरकार। यू आर हैप्पी विद द परफॉर्मेंस? एग्जैक्टली, बिल्कुल 100% हैप्पी। 100%. Each and every sector will be happy with what they are doing. What are the biggest factors on which you will vote? I would say कि after मतलब जब से देवेंद्र सर हैं, they done lots of development from past years. Students पहले hostels and all ये सब नहीं था. Right now इतने सारे hostels सर ने under government बनाए हैं. What's going to be the biggest factors on which you will See, vote? basically, I know the journey of industry. I know the journey of development. I know the global and local issues so far. If you see the entire global is burning, and in India, if you found that if we are really peaceful, just because of the philosophy of the government, from students to industrialists, everything it is there, which is really growing. Country like Germany, which is basically not doing anything, they are bankrupt as such. There is no development in Germany, but in my country, everything is there. So your And it is just because of the philosophy of the BJP government. It is not like BJP I am saying. I am talking about the philosophy of the BJP government. Our orientation is toward the philosophy of the government, not toward the man. We love definitely our people like Devendra ji, Nitin ji, because they have developed my city like anything. But you are saying that they've done better. And Yeah, that's they why are you're not voting. better, best. इकोनॉमी और जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, वो आपको लगता है कि ये जो यूथ के लिए वो है अपॉर्चुनिटीज के नहीं है? Opportunities are there. Just people have to make step out of the door and we will find something out. लेकिन आपको जाना पड़ेगा बाहर और देखना पड़ेगा कि एक्चुअली आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है. If you will sit around here and say कि जॉब नहीं है तो ऐसा नहीं होगा. इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? तो डेवलपमेंट का इधर नागपुर में जितना डेवलपमेंट हुआ, मेट्रो आई, मिहान आया, प्रोजेक्ट्स आए इतने सारे, लाडली बहन अभी दिया है, बहनों को भी खुश किया है. सरकार ने सारे तरह से सारे सेक्टर में सोचा है, किसानों को दिया है पैकेजेस, हर चीज में सरकार ने काम किया है. तो खुश है? भाजपा से खुश है. सबसे बड़े फैक्टर्स क्या है? डेवलपमेंट. और कौन लगता है वो डेवलपमेंट करेगा? मुझे लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट या देवेंद्र फडणवीस ये दो लोग अच्छे हैं, गडकरी जी है, ये डेवलपमेंट कर सकते हैं. हम लोगों ने बीच में देखा है पिछले 2.5 साल के अंदर में, जो बीच में उद्धव गवर्नमेंट के समय में डेवलपमेंट रुक गया था नागपुर का, तो आप हम 2.5 साल में देखा है कि वो डेवलपमेंट काफी हुआ है. We might be in the constituency of Devendra Fadnavis, but we see a whole lot of support coming in for the BJP and Devendra Fadnavis. And it's also interesting because when you traverse from the rural belt to the urban belt, you can see the difference. So if you're in a mandi or you're in a cotton field in the rural belt and you speak to a farmer and he tells you कि तेल 23 रुपए हो गया है, understandably that divide changes when you come to the urban belt, and the kind of support that you see for the BJP as well as the local candidates there, the local BJP faces, be it Devendra Fadnavis, be it Nitin Gadkari, it echoes here. You can see it. It's a strange mix, this election. If there is agony, there is ecstasy. If there is deep dejection, there is the joy of deliverance. It's game on, Maharashtra.